بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حاجی طاہر حنیف صاحب، رفیع اللہ نیازی صاحب نے بریک پر جانے سے پہلے جو کنسرنز ان کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جلدی کس چیز کی ہے. آرٹیکل 63A والا فیصلہ تو آ گیا، بہرحال اب امینڈمنٹس کو لے کے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی جلد بازی کا شکار ہے اور جلدی میں چیزیں کرنا چاہ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ایس سی او سمٹ کا کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی وفود آ رہے ہیں، ہم لوگ تھوڑا ٹھہر جائیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں ٹھہرتے تھوڑا سا؟ جی خان صاحب، نیازی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی مشینری استعمال نہیں کی، وسائل استعمال نہیں کیے. یہ تو بات روزے روشن کی طرح ہے. چلو ایک تھوڑی دیر کے لیے ان کی یہ بات مان لیتے ہیں. تو بھائی جان، جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے کسی صوبے کا، اس کے ٹائم کی کوئی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ اس اسمبلی کی ان لوگوں کی کوئی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے کہ یا صرف احتجاج کرنا ہے، وہ بھی اسٹیٹ کے خلاف؟ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو جس وزیر کو آپ نے کرپشن پہ نکالا ہے وہ کہہ رہا ہے قاری امین گنڈا پور صاحب کرپشن کر رہے ہیں اور کرپشن چھپانے کے لیے سارے معاملات کر رہے ہیں. یہ بات ختم ہوگی. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو قانون سازی والی ہے. دیکھیں، پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا. ہم نے ایک کوشش کی، اس میں ناکام ہو گئے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لوگوں نے اس پہ متفق نہیں ہوئے. تو اب ہم دوبارہ وجہ سے ہوئے، آپ لوگ ناکام بھی اس وجہ سے ہوئے کہ آپ لوگوں نے جلدی میں کام کرنے کی کوشش کی. انفیکٹ نواز شریف صاحب بھی شہباز شریف صاحب کسی بات پر ناراض ہوئے کہ آپ لوگوں نے صحیح چیزیں کنوے ہی نہیں کی، آپ لوگوں نے پہلے تیاری نہیں کی اور پھر آپ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. حضور مطلب آپ ایٹ لیسٹ اس کو ڈسکس کریں، پبلک ڈیبیٹ ہو اس کے اوپر، لوگوں کو پتہ تو چلے امینڈمنٹس کیا آ رہی ہیں. یہاں پر آپ کے پارلیمنٹیرین کو نہیں پتا تھا کہ حکومت کون سی ترامیم لے کر آ رہی ہے. یہی کنسرن جو ان کے پاس کون سا مسودہ ہے؟ جی حلقوں والا ہے یا بلاول والا ہے یا ان کا اپنا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں، اگر ایک دفعہ ناکام ہوئے ہیں تو کچھ منفی چیزوں میں بھی مثبت پہلو نکلتے ہیں. تو اب زیادہ شدت سے باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، زیادہ کلیئر ہو رہی ہیں. اگر پارلیمنٹ کے لوگوں نے اجازت دی تو امینڈمنٹ ہوگی نا جی. پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھدار ہیں، وہ قانون کو، آئین کو سمجھتے ہیں. اب دیکھو نا جی، مجھے ایک جملہ مکمل کرنے دیں. مسلم لیگ نون اکیلی یہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی دوسری جماعتوں کی حمایت حاصل ہمیں کرنا پڑے گی. تو وہ ہم اگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری پارلیمنٹ کا کنسنسس ہوگا تو یہ ترمیم ہوگی. تو اگر ہم ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جائیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ اب نہیں، اچھا ان کا کنسرن یہ ہے کہ آپ کم از کم اکتوبر کا مہینہ ویٹ کر لیں، آپ نومبر میں جا کے ترمیم کی طرف چلے جائیں. تو میرا خیال ہے ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ان کو بھی اکتوبر سے ہے، ان کو ترمیم سے شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، ان کا کام ہے، پہلے انہوں نے ایک اپائنٹمنٹ روکنے کی کوشش کی، اس میں بہت ساری تباہی کا باعث بنے ملک کے لیے، اپنے لیے بھی. اور اب یہ پارلیمنٹ کی ترمیم کو لے کر اتنا بڑا احتجاج کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کی ترمیم کسی ڈنڈے کے زور سے تو نہیں ہوگی، لوگوں کی رائے سے ہوگی. ڈنڈے کے زور سے ہوتی تو پہلے ہو جاتی. اب لوگوں کو ہم کنونس کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں. تو پارلیمنٹ کا کام ہے، ممکن ہے اب اکتوبر گزر جائے جب ترمیم کے لیے اجلاس بلایا جائے گا. بھائی صاحب تسی کس طرح کنونس کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنے سارے ایم این ایس خیبر پختونخوا بھیج دینے، آپ کس طرح کنونس کر رہے ہیں لوگوں کو؟ جی بات سنیں، دیکھیں یہ اکیلے نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں. ہم جس طرح جے یو ایف اے کے ساتھ یہ بھی بات کر رہے ہیں، ہم بھی بات کر رہے ہیں، اور دوسرے بھی جو کہہ رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں اس کو. دوسرے بھی کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. ہم ان کو ساتھ لیں گے. اگر ہمارے 2/3 اکثریت حاصل ہوگی تو ترمیم ہوگی نا میرے بھائی. اگر نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ ہمیں تو جو رائے ہے، جو لوگوں کی رائے ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، اسے ماننا ہے. اسے زبردستی کیوں روک رہے ہیں آپ بھی؟ ہم اکتوبر میں نہ کریں، نومبر میں نہ کریں. اس دیکھیں کل رانا ارشد صاحب ہمارے پروگرام میں تھے تو رانا صاحب نے تو کہا کہ جس وقت ہمیں پتہ لگ گیا ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہم نے نہ دن دیکھنے نہ رات، ہم نے فوری طور پر ترمیم میں چلے جانا ہے. مطلب یہ عالم ہمیں اب دکھائی دے رہا ہے نون لیگ کے اندر. جو خان صاحب اچھا کام ہے اس میں ڈیلے ہونی ہی نہیں چاہیے. حیدر صاحب یہ ان کا خواب ہے، کبھی پورا نہیں ہو سکتا.
डिले करने की जरूरत ही नहीं है ना जी। जब नंबर्स पूरे हो जाएंगे, इसका मतलब नंबर तब पूरे होंगे जब लोग कन्विंस हो जाएंगे। जब कन्विंस हो जाएंगे तो तरमीम करने में देर क्यों करनी भाई? हाजी साहब अगले जन्म में पूरे हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, न्यायाधीश साहब नहीं होंगे तो हम नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। टाइमिंग गलत है ना हाजी साहब, टाइमिंग गलत है, टाइमिंग देखा ना, न्यायाधीश साहब ने भी सब कह दिया। मसला न्यायाधीश साहब को भी तरमीम से नहीं है, मसला इनको टाइमिंग से है। मतलब तहरीक इंसाफ भी पब्लिक में लॉलीपॉप और दे रही है। इनको मसला सिर्फ ये है कि अमेंडमेंट की टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, इनको अमेंडमेंट से प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ एक बात हाजी साहब के मैं न्यायाधीश साहब आपके पास आता हूँ। हाजी साहब अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लें, फिर मैं नवाब साहब के बाद न्यायाधीश साहब आपके पास आता हूँ। जी अब देखें, न्यायाधीश साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। बात यह है कि हम जब तक पार्लियामेंट इजाजत नहीं देगी तरमीम नहीं हो सकती, इसमें किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात सुने खान साहब, एक और बात का मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, मेरी बात सुने। ये फार्म 45 और 47 का बड़ा वावेला आजकल चल रहा है। आपको याद है कि 2013 में 35 बेंचर का एक वावेला चला था, उसका अंजाम क्या हुआ था? ये कोर्ट में जाके इन्होंने फिर उस पर यू टर्न नहीं लिया था, ये नहीं कहा था कि सियासी बयान है। अब 4 इलेक्शन की दोबारा गिनती हुई है जो, और 4 सीटें नून लीग ने जीती हैं। तो ये बात ये है कि ये कभी नहीं मानते। अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। खैबर पख्तूनख्वा से क्या नून लीग जीती है? वहां से तो ये जीते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी धांधली हुई है। तो धांधली किसके हक में हुई है? फिर मौलाना साहब बात ये है कि सियासतदान, मैं इसलिए कहता हूँ नहीं करते। हाजी साहब मैं इसलिए कहता हूँ कमीशन बहाल है जिसको रिजर्वेशन। मुझे नवाब साहब के पास जाना है, मैं पहले नवाब साहब का टेक ले लूं। नवाब साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो मामला है, 2 चीजें इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो तहरीक इंसाफ का भी वर्जन ऑलमोस्ट ये है कि ठीक है, अमेंडमेंट में कुछ चीजों से उनको मसला नहीं है, उनको मसला इसकी टाइमिंग का है। हुकूमत भी चाहती है, मसला हुकूमत के पास भी टाइमिंग है। हुकूमत भी जो है वो कुछ चीजें जल्द अज जल्द करना चाहती है ताकि अपनी ग्रिप को मजबूत कर सके, या एक अपेरेंटली जो तासुर है कि तहरीक इंसाफ की ग्रुप अदरवाइज मजबूत हो जाएगी, उस तासुर को जाहिर किया जाए। आपके नजदीक इसमें क्या चल रहा है? सेकेंडली, जो हाजी साहब ने कहा कि मौलाना साहब को केपीके में इश्यूज हैं, आप बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, मौलाना साहब को बलूचिस्तान के रिजल्ट्स के ऊपर भी कंसर्न्स नहीं है? आपके तो दोस्त पार्लियामानी लीडर भी हैं बलूचिस्तान में, JUI के पक्के दोस्त आपके। हाँ जी, मेरा पक्का दोस्त है जी। लेकिन जब हम छोटे थे, उसके बाद जवान हुए, तो उसके बाद सियासत जब शुरू की उन्होंने, तो फिर हमारी दोस्ती थोड़ी सी ढीली हो गई। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे इन बातों को छोड़ के कि कम अज कम हाजी साहब मोहतरम है जी, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, मैंने आपसे बात की थी कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ को यौम तकबीर पे मैंने कहा था उनसे, जो मैंने आपसे पहले कहा। मेरी बात उन्होंने रही, हुकूमत में है, आज से नहीं है। मैंने आपको बताया भाई, अब ये घर जो है भर जाएगा, साबिक वजीर आला, साबिक वजीर आजम, साबिक फलाना, ठीक। तो इतनी तो इन लोगों में वो आनी चाहिए थी कि अपडेट्स आ जानी चाहिए थी कि सियासत को सियासत की तरह ही चलाते, सबके साथ मिलके कंसेंसस डेवलप करते। अब तो ये तैयार बैठे, ये जो धंधा करते थे पहले, उसमें एक्सपर्ट हैं जी, वो बहुत ही पार एक्सीलेंस है। झागा मागा के बाद ये सरगर्म सब चुशीदा हो गए हैं, पावर्स भी हैं, उनमें सब कुछ भी है। और उन्होंने जो कुछ किया पहले सिंध हाउस में, मैरियट में, और उसके बाद हमजा शरीफ को कैसे वजीर आजम बनवाया, तो वो सिलसिले आ जाते हैं। ठीक है जनाब, अब भी यही है। खान साहब की पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस पार्टी से उस पार्टी से निकल, इलेक्टेबल्स नहीं है जी, ये इलेक्टेबल्स में नहीं कहता हूँ जी। तो ये जो है ना वो आ रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर था 2013 में, मैं गया उस क्या कहते हैं अपने वो जो जुडिशल कमीशन था, मैंने कहा था जी धांधली नहीं हुई, उस्तादी हुई है। उस वक्त उन्होंने सोचा कि अब के बार जो है ना, अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इस धांधली हुई है। इनका जो लीडर है काफी ज्यादा, वो सुप्रीमो जो है, वो सीने पे हाथ रख के हल्फन कहें कि वाकई वो जीते हैं जी। मुझे पता है बलूचिस्तान में भी यही हुआ है, हर जगह यही हुआ है कि क्या कौन सा फॉर्म है जी,
हाँ जी, सब के सब 47 के हैं। मैं आपको बताऊं चंद कुछ इस किस्म के होंगे। हम तो इलेक्शन से बाहर हैं जी। अगर हुकूमत इनके साथ वो आगे है, खान साहब की पार्टी में वो नहीं है कि आपके ही प्रोग्राम में याद करें, मैंने आपको कहा था बहुत सारे वकील हैं सियासी पार्टी में, इतने नहीं होने चाहिए और उनका कोई फायदा भी नहीं मिल रहा उनको। तो इस वजह से कहने का मतलब ये है कि मियां साहब खुदा को माने, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाए, मजबूत बनाए। अब परसों भी एक व्लॉग हम यही सुन रहे थे कि जी पठान आ गए, उन्होंने हमला कर दिया, पंजाब के ऊपर हल्ला बोल दिया है। ऐसी बातें मत करें जी, सियासत है, सियासत में लोग आ रहे हैं। पठान पंजाबी को अगर इस तरह करेंगे तो मैंने आना है लाहौर, मैं कैसे आऊंगा मुझे बताएं। अब पठान पंजाबी की बात नहीं है, कच्ची सियासत खेल रहे हैं, कोई सियासत नहीं हो रही है, बस ये लेजिस फेयर है, वही चीज चल रहा है जो है, बस चल रहे तो ऐसे। अब ये है कि इंतकाम और नफरत में बहुत ज्यादा बातें बढ़ गई है। अब हर अच्छा नवाब चीज साहब, जो है, मुझे खसूस मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बताइएगा। मौलाना साहब के कंसर्न्स बलूचिस्तान में इलेक्शंस के नताइज के ऊपर कितने हैं आपके नजदीक, या आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है इस हवाले से? बलूचिस्तान में मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि मुझे पर्सनली मालूम हुआ है, लेकिन मेरा दोस्त आपने कहा नवाब साहब जो हैं वो उनके पार्लियामानी लीडर भी है, वो भी वोकल नहीं है, वो भी नहीं बोल रहे भाई हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, वहां पे उनके साथ ज्यादती हुई है। मैंने नवाब असलम अली सानी साहब को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स। इश्यूज पूछे मैंने, इश्यूज और नो कमेंट्स। हाँ जी, ठीक। तो वो ऐसे ही करेंगे जी, बड़े आदमी है, नवाब है, तो वो ऐसी बातें करेंगे। सियासत उनकी भी यही है, वो मुस्लिम लीग में तो वो खुद नहीं रहे, उनके भाई रहे हैं। वो खुद पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान नेशनल पार्टी थी, और उसके बाद नेशनल पार्टी भी होती थी उसमें भी, और अब जमीयत में है। तो मैंने कहा था, मेरा दिल भी चाहा कि भाई मेरा दोस्त मेरा चीफ मिनिस्टर बने। मैंने कहा था कि जी नवाब साहब को वजीर आला बनवा दें, दुआ कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो उसने कहा कि जो ना, तो मुझे तुम्हारे दोस्त नहीं छोड़ते। मैंने कहा मेरे कौन दोस्त? उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया। तो मैंने उसको कहा कि भाई 2013 में काश मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, क्या बोलते हैं उसके केयर टेकर, क्योंकि केयर टेकर अमूमन ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। 2013 से अब तक मैं एक कोने पे बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, मुझे सियासत आती है, मैंने सियासत देखी है जनाब। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि मैं जा रहा था इस्लामाबाद के लिए, मेरे दोनों रास्ते बंद थे। वो क्या कहते हैं, वहाँ दो धरने थे, एक जमींदारों के और एक मास्टर्स के, टीचर्स के। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं चाहता हूँ उनसे बात मुज़ाकरात करता हूँ। तो मेरे जो चीफ सेक्रेटरी थे और बाकी अफसर थे, नहीं सर आप क्यों जाएंगे? मैंने कहा भाई वो रास्ता पकड़ के बैठे हैं, तो वो उनको सुनूं तो सही, उनको तसल्ली तो होगी ना कि पीछे ये आया। तो ये बात चल रही, और मैंने सेक्रेटरीज वगैरह ने कहा कि आप नहीं जाएंगे। उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि नवाब साहब मत आए, हम आते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है, मेरे बाप चीफ मिनिस्टर था, तो उन्होंने जो नाम कमाया था और जो मेरा गट रिएक्शन था कि मैं जाता हूँ, तो उसके ऊपर उनका क्या मत आए, उनको कहे हम आते हैं। वो मेरे पास आए, कोई मेरे पेशानी चूम के, गाल चूम के बैठा रहा वहां पे, और वो करने के बाद मैंने मसला वो हल कर दिया। ठीक है ना जी। तो ये हुकूमत में जो हुक्मरानी करते हैं, इनको चाहिए आने दे, उनको कोई मसला नहीं है। रोकने की कोशिश करेंगे तो रेल है, पानी का भी हो, हवा का भी हो, वो रुकती नहीं है, फिर वो आती रहती है। तो खामखा के लिए दुश्मन लोग फायदा उठाएंगे। इन लोगों को अकल पता नहीं क्यों नहीं आ रही कि भाई हमने क्या करना है। नफरतें फैला रहे हैं। हैदराबाद खान पठान पंजाबी कभी मत करे, खुदा के लिए आप लोग जो ना इस मामले को समझाएं इनको। ये चीज पठान पंजाबी बलूची इस बहस के अंदर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। रफीउल्लाह न्याई साहब, हाजी साहब ने भी जो पॉइंट उठाया, आपने भी पहले गुफ्तगू के अंदर, हाजी साहब ने गुफ्तगू के अंदर बात कर दी कि टाइमिंग, तो आपको इस कि अमेंडमेंट का मसला नहीं है, आपको उनके जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं वो तो खैर समहाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, इमरान खान साहब खुद सिग्नेटरी थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हो रही थी। आज आप उससे भी नेगेट कर रहे हैं कि नहीं जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है ये तो पैरेलल हम सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर देंगे, क्योंकि खान साहब खुद सिग्नेटरी हैं उस सीओडी के। तो आप लोगों को फिर टाइमिंग से इतना क्यों इशू? आप क्यों कह रहे हैं कि 1 महीने बाद ये अमेंडमेंट हो जाए, फिर कोई मसला नहीं है, हुकूमत 1 महीना इसका लिंगर ऑन कर दे? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा। जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन हुआ था, वो 80 डेज पहले हो चुका था।
मगर अब मंसूर अली शाह साहब का अभी तक जो है उसका एज ए चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, शकूक तो पैदा हो गया। जय साहब, मैं भी आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जिस काजी फाइज साहब का नोटिफिकेशन हुआ था तो उस वक्त भी आप लोग ये बातें कर रहे थे कि ये देखे जी, ये पहले नोटिफिकेशन हो गया ताकि जो है वो बताया जा सके अगले मामलात के हवाले से कि चीजें अब उस हवाले से अपना हवाई रुख इख्तियार कर लें। पहले करके गलत किया हुकूमत ने, तो आज वो नहीं कर रहे थे, भी आप हमारे किसी लीडर ने, किसी प्रोमिनेंट लीडर ने इस किस्म की ना स्टेटमेंट दी है कि सर, क्यों हुआ है। हम तो इस चीज का कायल है, हम तो सीनियरिटी वाला क्राइटेरिया जो है, इमरान खान साहब ने भी यही बातें की थी सर, हम सीनियरिटी वाले क्राइटेरिया को हम उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। अब देखें ना, जब चीज़ें मशकूक हो जाएं, आपने 63A की जो है इनकी नज़रसानी की, रिवीजन पिटीशन जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया ना, ज़मीरों के मंडी को लीगलाइज कर दिया, ज़मीरों की मंडियों को। आप लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ गए, आप नहीं इस वजह से गए कि आप उनका रास्ता रोक सके? देखें आप ज़मीर देखो, ज़मीरों के खरीदो फरोख्त की मंडी को आपने लीगलाइज कर दिया है। अब ये याद रखें हाजी साहब, मैंने तसक बात नहीं की। जब आपका वजीर दफा ये कहता है कि पठान आके हमलावर हो गए हैं, वो खुदा का खौफ का क्यों शाओइज्म को आप हवा दे रहे हैं? ये फेडरेशन है और इमरान खान ने पहली दफा, वो फेडरेशन की अलामत है, कोई इमरान खान ही KPK है, इमरान खान ही सिंध है, इमरान खान ही बलोचिस्तान है, इमरान खान ही पंजाब है, इमरान खान ही गिलगित बल्तिस्तान है, इमरान खान ही कश्मीर है। उसने ये सारा जो शाओइज्म था उसको ख़त्म करके एक कौम बना दिया है। खुदा के लिए आप अपने वज़ीर दफा को समझाएं, मेरे ख्याल में वो सठिया गया है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी, उसको चेंज करें। जहाँ तक ये अमेंडमेंट की बात है, उसकी फेडरेशन यानी अपना आईनी कोड की बात है ना, कि आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाहते हैं, हमें इनकार नहीं है। उसके खद्दो खाल क्या है भाई, बताएं। दुनिया में ये जो आईनी कोड्स होती हैं, जो फेडरेशन और यूनिट्स के दरमियान जो डिफरेंसेस होते हैं, कोई माली डिफरेंस है या कोई और है, उसको डिस्कस किया जाता है। आप एक पैरेलल सुप्रीम के मुकाबले में बल्कि उससे एक बड़ी अदालत लाना चाहते हैं कि वो तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होंगे वहाँ सेट असाइड हो जाएंगे। इस तरह नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की अपनी डोमेन है, वही सुप्रीम कोर्ट आला अदली है। और जहाँ तक आप आईनी अदालत की बात करते हैं, तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो फेडरेशन यूनिट्स के दरमियान जो इशू होंगे, जो रेज होंगे, उसके लिए आप ठीक है आए, उसके लिए आपको कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आपने फरमाया, जैसे नवाब साहब कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप मसवदा लाएं, मंजर आम पर उसको पब्लिक करें, दानश्वर उसको देखें, उस पर डिबेट हो, उस पर सारी इकाइयाँ उसको देखें। जब आपके मसवदे कई है, मल्टी मसवदे आप लेके फिर रहे हैं, पता ही नहीं है, ये इस तरह जो है ना, ये नो कॉन्फिडेंस है आपके अमेंडमेंट पे। ठीक हो गया। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, नाज़रीन ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं हाजी साहब से ये भी पूछूंगा कि मुसवदा क्यों हुकूमत मंजर आम पर नहीं लेकर आ रही। और ये तो कंसर्न बड़ा वैलिड है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, मतलब ये कोई छोटी चीज नहीं है। जब से मुल्क में आइन बना है, 26वीं आईनी तरमीम होनी है। इसका मतलब है कि 73 ऑनवर्ड्स अगर हम पिछले तकरीबन 50 साल को देखें, तकरीबन 51 साल, तो 51 साल के अंदर ये 26वीं तरमीम है। तो इट मींस के दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इतनी अहम चीज है, इसके ऊपर पब्लिक डिबेट की बड़ी जरूरत है। दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जब अमेंडमेंट्स होती हैं, उससे पहले बड़े पैमाने पर पब्लिक डिबेट होती है। तो हुकूमत क्यों जल्दबाजी का शिकार है? और अगर हुकूमत का यही प्लान था, तो क्यों 2-3 माह पहले इस चीज के ऊपर गौर नहीं किया गया? ताकि हुकूमत अगर इसको अक्टूबर से पहले करना चाह रही थी या अक्टूबर एंड से पहले, तो हुकूमत पहले ले आती, इसके ऊपर थोड़ी डिबेट हो जाती। इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद हाजी साहब से लूंगा। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेके कहना चाहिएगा। स्टे विद अस।